السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، اسلام جب اپنے امن و سلامتی کا پیغام لے کر اس دنیا میں آیا تو اس نے ظلم و جبر کے ساری روایتوں کو توڑ دیا، اور اس کے وجود میں آنے کے بعد جو ہے وہ انسانی ذہن و فکر کے دروازے واہ ہوتے ہوئے کھلتے گئے۔ اور اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام تر جو اہم ایجادات و تحقیقات ہیں وہ اسلام کے وجود میں آنے کے بعد اس کائنات میں، اس روئے زمین میں جو ہے وہ نمودار ہوتی گئی۔ لیکن یہاں پر آج ہم یہ جائزہ لیں گے کہ یہ سب باتیں ہونے کے باوجود ہمارا اپنا، ہم مسلمانوں کا کردار کیا ہے علم میں اور دنیاوی علوم میں مسلمانوں کا کردار۔ اس پر بحث کرنے کے لیے آج یہاں پر 3 علماء کرام داعیان اسلام ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا آپ کو تعارف پیش کرتے ہیں۔ میرے دائیں جانب جناب شیخ محمد اشفاق سلفی صاحب ہیں، جو کہ دربھنگا، بہار، انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور 1984 میں لگ بھگ انہوں نے جو ہے مدینہ اسلامی یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی ہے، اور 25-26 سالوں سے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں، اور بڑی ہی تندہی سے اس میں کام کر رہے ہیں، اور کئی عالمی اور بین الاقوامی جو کانفرنسیں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں اپنی علم کے اس باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مدعو کیے جاتے ہیں۔ ان کے بائیں مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب تشریف فرما رہے ہیں۔ انہوں نے بھی مدینہ یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی ہے، آپ فی الوقت دہلی میں مقیم ہیں، اور بڑے اچھے خطیب ہیں، اور دین کی تبلیغ میں ایک عرصے دراز سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک ماہنامہ ترجمان اس کے مدیر بھی رہ چکے ہیں۔ میرے بائیں جانب ایک بہت بڑی علمی شخصیت تشریف فرما ہے، اور بھیونڈی سے تعلق ہے ان کا، جناب ابو ظفر حسان ندوی صاحب تدریس سے وابستہ رہے ہیں، اور دین حق کی بات کو پہنچانے کے لیے کئی اسفار انہوں نے کیے ہیں، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر جا کر جو ہے وہ دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام مسلسل کرتے آئے ہیں۔ مولانا رضا اللہ صاحب فرمائیے کہ وہ پھر سے یہ دور شروع ہو جائے، اتنا شاندار، اتنا یہ تو غالباً ہم لوگوں کے نصیب میں نہیں کہ ہم دیکھ سکیں یا غالب ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ تڑپ اندر رہتی ہے کہ پھر سے یہ دور جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ یہ علوم میں ہماری جو پیش رفت ہے اس کے تعلق سے کہاں سے آغاز، کس طریقے سے، کیا اس کی شروعات کہاں سے کرنی ہے، میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں پھر سے میں بر صغیر کے حوالے سے، کیا آپ کے ذہن میں کیا ایک اس کی پیش رفت کیسے ہو سکتی، کیا ہے اس کے لیے؟ دیکھیے، صورتحال ایسی ہے کہ گرو گڑ ہو گیا ہے، چیلا شکر بن گیا ہے، گڑ کو شکر بننے میں بہت وقت لگے گا۔ یورپین اقوام نے جتنی ترقی کی ہے، اس وقت جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں تک ہمیں پہنچنے میں ابھی مدت درکار ہے۔ آگے زمانے میں وہ ہم سے اور کتنے آگے نکل جائیں گے، اس کا اگر ہم تصور کریں تو یہ بات ایسی لگتی ہے کہ شاید ہم ان کو پکڑ نہیں پائیں گے۔ لیکن کیا اس کے لیے ہم حوصلہ ہار دیں یا اس کے لیے کچھ کریں؟ تو اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھیں اور اپنے قوم کے وقار اور عزت کو سامنے رکھیں، اور آپ جیسی کچھ شخصیتیں ملت میں، قوم میں ایسی پیدا ہوں جو قوم کے لیے جئیں، قوم کے لیے مریں، قوم کے لیے سوچیں، قومی وقار کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں، تو ناممکن کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں۔ آج ہمارے پاس وسائل ہیں، اور ان وسائل کو ہم کام میں بھی لا سکتے ہیں۔ اس ہندوستان میں اگر ہم یہ مانیں کہ اس وقت ہماری تعداد مسلمانوں کی 22 کروڑ ہے،
محتاط اندازے کے مطابق، اور ہم یہ فرض کریں کہ 22 کروڑ میں آدھی آبادی ہماری اس لائق ہے کہ وہ 1 روپیہ دے سکتی ہے قومی فنڈ میں، تو آپ دیکھیے کہ 11 کروڑ روپیہ ہم روزانہ جمع کر سکتے ہیں۔ اخلاص ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے اس سلسلے میں، اور قوم کے لیے سوچ ہونی چاہیے کہ ہمیں فکر قوم ہونی کو چاہیے۔ جہاں ہے اس سے اس کو اٹھا کر اوپر لانا ہے۔ اگر یہ سوچ ہماری پیدا ہو جائے، ہمارے قوم کے لیے درد پیدا ہو جائے، اور ہم اپنی اس قسم پرسی کی جو حالت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کا واقعی ادراک کر سکیں، ایک جو قوم ایک دن میں 11 کروڑ روپیہ جمع کر سکتی ہو، وہ 1 مہینے میں کتنا اور 1 سال میں کتنا جمع کرے گی، اور کون سا منصوبہ ایسا ہے جو پورا نہیں کر سکے گی؟ پورا نہیں ہو سکتا ہے، صحیح فرمایا آپ نے۔ اور ندیم صاحب، میں آپ سے گفتگو کروں گا اس تعلق سے کہ خاص طور پر سائنسی جو جدید تحقیقات ہیں اس میں جو ہم نے علوم ساری دنیا کو دیے، سب کچھ دے دیے، لیکن اب جو پچھڑے ہوئے ہیں، اور آج جو منظر ہمارے سامنے یہ ہے کہ بھئی ہر 1 سال 1.5 سال کے بعد میں ہمارے لیے یہی ایک کام رہ جاتا ہے کہ ہم CNN اور BBC کے اوپر جو ہے وہ یہ منظر دیکھتے رہیں کہ اب جو ہے امریکہ اور انگلینڈ اور فرانس جو ہے وہ کس مسلم ملک پر بمباری کر رہا ہے۔ یہ جو عالمی سطح پر میں بات کر رہا ہوں، برِ صغیر سے ہٹ کر اب اس پہ جا رہا ہوں، وہاں پر وسائل ہیں ہمارے پاس میں، ہمارے کئی ممالک ہیں جن کے پاس میں وسائل ہیں، سب کچھ ہے۔ ایک خاص فکر کی تبدیلی کی آپ کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے عمر صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ بین الاقوامی سطح پہ بات کرنے آگے، بر صغیر سے نکل کر کے۔ پہلی بات تو آپ سمجھیے کہ تاریخ میں دور یہ بھی گزرا ہے کہ یونان نے قیادت کی، علم کی۔ آج بھی کوئی رائٹر لکھتا ہے تو پہلے ہی یونان کے حوالے سے بات شروع کرتا ہے، لیکن آج یونان ختم ہو چکا ہے۔ مصر نے قیادت کی، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر اس زاویہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ مختلف خطوں کو مختلف دور میں نوازتا ہے۔ یورپ نے جو اپنے کو ڈارک ایجز کے نام سے پردہ ڈال دیا اپنے اوپر، ڈارک روم کے، یہ ڈارک ایجز کے، تو آج ان کو مل رہا ہے۔ تو یہ سچ ہے کہ ہم کو برصغیر میں نہ ملے، لیکن یورپ کے مسلمان کی طرف سے مایوس نہیں ہوں میں کہ اس خطے کے اوپر اس وقت نظر ہے۔ دیکھیے علوم منتقل ہوتے رہتے ہیں، جیسے علوم اسلامیہ کو دیکھیے آپ کہ لاہور مرکز تھا، دلی مرکز ہو گیا، اب دیکھیے علوم مشرق کو جا رہے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں علوم اسلامیہ میں تو بہار کا جو کنٹریبیوشن ہے بہت زیادہ ہے، بہت دور پہنچ گیا، ہوتا ہے کل وہ چائنا میں پہنچ جائے۔ تو مسلمان کے ساتھ یہ بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہا ہے، اگر اکائی مان لی جائے تو۔ اگر الگ آپ بانٹ دیں گے تو یقیناً خالی ملے گا آپ کو۔ ایک مسلمان ایک ہے پوری دنیا کا تو خالی نہیں رہا۔ آج بھی حکومتیں ان کی موجود ہیں، ان کا سورج کبھی ڈوبا نہیں ہے، نہ فکری اور نہ اقتدار کا، نہ علمی۔ تو اس سے میں بہت پر امید ہوں۔ بتاؤں آپ کو، علامہ اقبال نے ایک خط لکھا تھا، جو ان کی بڑی اہم کتاب ہے، سید وحید الدین فقیر صاحب کی روزگار فقیر، جو فہم اقبال میں بڑی اہم کتاب ہے۔ اس میں خط تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ کتاب دیکھی ہے کہ کسی مسلمان فزکس کا MSc کیا ہوا طالب علم ہو تو اس کے لیے اسکالرشپ مہیا کیا جائے، وہ جا کے ایٹمز کے اوپر کسی نے بہت پہلے لکھا تھا، اس کا حوالہ نہیں دیا علامہ اقبال کا، انہوں نے لکھا کہ میرے دماغ میں یہ بات ہے، وہ کتاب موجود ہے، بتا رہے کہ ہوتا 3 ملین میں وہ بھی رہی ہو کتاب۔ تو چیزیں دی ہیں، مسلمان کر رہا ہے، لیکن یہ توقع ہی کرنا یہاں ہو جائے گا نہیں، لیکن ہوگا، بالکل ہوگا، مسلمان کے ہاتھ سے ہوگا۔ یا پھر جہاں یورپ میں ترقی ہو رہی ہے اس میں مسلمانوں کا بھی کنٹریبیوشن ہے، ان کا اقدام ہے۔ بل گیٹس کا سب سے بڑا جو آدمی رائٹ ہینڈ ہے وہ بہار کا ایک نوجوان ہے، وہ کرتا ہے کام سب۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان میں صلاحیتیں نہیں ہیں۔ اب دیکھیے بتاؤں میں آپ کو، جو بات چھپانے کی آپ نے کی نا، چھپا دیتا، یہ واقعہ ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قید کیا گیا تو ان کو ایک مکان دیا رہنے کے لیے،
3 या 4 कमरे थे, एक हॉल था वो। तो एक रोज दूध वाला कहने लगा कि बीबी जी कल से दूध नहीं लाऊंगा। क्या लगे? क्या तुमने पैसे नहीं दिए 2 महीने से दूध के, हम कितना उधार दें? तो वो शहजादी बनी जो बहू थी घर की, वही घर संभालती थी, तो उसको समझा रही थी बैठ करके कि देखो हम हिंदुस्तान के बादशाह थे, हम यहाँ सजा भुगत रहे हैं, हमको ब्रिटिश सरकार वजीफा देती है, हमारा पैसा नहीं आया है, आ जाएगा हम दे देंगे। तो वो इस अंदाज से दूध वाला सुन रहा था कि ये लड़की उसको बेवकूफ बना रही है, गैर यकीनी यानी गुफ्तगू थी। क्यों? जो कह रही थी हाल उसकी शहादत नहीं दे रहा है। तो कभी किसी कौम को इस दौर से भी गुजरना पड़ता है, और जब माजी और हाल में तताबुक नहीं होता ना, तो फिर बात बड़ी संगीन होती। नाजरीन, ये गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी रहेगा। फिर वक्त हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी ही देर बाद हम फिर से हाजिर हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि मुसलमानों का जदीद उलूम में क्या किरदार है। बात को हम अभी फिर से जारी रखते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हाँ सरफी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब इस ताल्लुक़ से हमारे जो अकाबिर हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो हमारे कायदीन हैं, और सही मानों में कायदीन मैंने हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि क़यादत के नाम पर वजारत आ गई है, तो वज़ीरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सही मानों में जो कायदीन हमारे हैं, उनको क्या रोल अदा करना चाहिए इस सिलसिले में कि फिर से ही ये चीज़ जो है वो वापस आ जाए। बात तो ये है कि इस उम्मत में क़यादत का बहरान है, और ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान में। सियासत तो है, सियासी बातें तो बहुत लोग करते हुए मिल जाएंगे, हाई लेवल से लेकर नीचे लो लेवल तक आ जाइए तो, लेकिन क़यादत और कायदाना सलाहियतों से लोग महरूम हैं। चंद लोग हैं, चंद नफूस हैं, उनके अंदर ज़ाती तड़प भी है, लेकिन ये तड़प और ज़्यादा वसी पैमाने पे पाई जाए। 2 चंद गिने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ सोसाइटियाँ चला रहे हैं, कुछ ट्रस्ट चला रहे हैं, अपने तौर पर कुछ टेक्निकल इदारे भी उनके हैं, हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी, अलामीन सोसाइटी। इस तरीक़ा से हम ये उम्मीद करते हैं कि बड़े सोर्सेज हैं इनकम के। हमारे डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब आलमी आदमी हैं, अगर ये चाहें तो टेक्निकल इदारे, फ़नी इदारे, मेडिकल इंजीनियरिंग के बहुत कामयाब इदारे अपने अंदाज से चला सकते हैं। तो ऐसे अफराद अगर अल्लाह ताला मुहैया कर दे उम्मत को, और इसी तरीक़ा से जो मैं ये चाहता कि जैसे ये इदारे, जैसा फरमाना कि टेक्निकल इदारे, ये इदारे IRF के ज़रिए से इदारे में करना है कि क़यादत में वगैरह सब इस किस्म के इदारे का मैं समझता हूँ कि पहले ज़रूरत है कुछ हम तहकीकी इदारे जो हैं, जैसा अगर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन अगर दीन के मामलात में तहकीक हो रही है, जी जी, तो क्यों ना जो है वो साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स उसके मामलात में तहकीक हो जाए। हाँ हाँ, मेरे कहने का मकसद यही था कि ये जो फ़नून जदीदा हैं, या उलूम जदीदा, उलूम असलिया जिनको कहते हैं, जिनके सबब साइंस और टेक्नोलॉजी के सबब यूरोप बहुत आगे बढ़ गया है, या मुसलमानों को यहाँ पस्ती झेलनी पड़ रही है, तो इस कौम के लेवल को हाई करने के लिए, इसके उलूम जदीदा के मैदान में भी इसके स्टेटस को हाई करने के लिए ज़रूरत है कि अफराद आएँ, वो रिसर्च इदारे के शोबे खोलें, या टेक्निकल हो, या मेडिकल कॉलेज हो, या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा तलबा हमारे लेकिन उनमें सब में जो है वो इस्लामी किरदार उसका जी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अच्छी बात आपने कही कि साहब जो इस तरह के इदारे हों, वो एक दीनदार आदमी की क़यादत में वो इदारा उसकी निगरानी में चले, जो नौजवानों के किरदार को पर भी अच्छी नज़र रखे, उनको दीन के मबादी से भी बताए। वरना ये उलूम, अगर एटम बम इसलिए ईजाद किया जाए कि दुनिया को तबाह कर देना है, इसीलिए कोई और नए उलूम पैदा किए जाएँ कि साहब हक़ की आवाज़ को दबाना है, मीडिया इसलिए तरक्की करे कि साहब फसाद और बेहयाई को फैलाए, तो इसके नहीं, लेकिन इनके बांधने के लिए, इनके रद्द के लिए भी कुछ करना चाहिए। जैसे कि मैं एक अर्ज करता कि भाई एटम बम तो वो हमारी मंजिल नहीं है, ये नहीं है, ये जो डिस्ट्रक्शन वाले, बहुत तबाही करने वाले जो हथियार, जो चीज़ें जो आ रही हैं, कई केमिकल हथियार आए हुए हैं, और कई किस्म के
रेडार्स आए हुए हैं जो इंसानों के बगैर चलते हैं, उनमें इंसानी नुकसान नहीं होता है, एक जो है वो नाप किया जाता है इस जगह पर ये डालने हैं और वो हो जाते हैं। इसको कम से कम दिफा की गरज से हम में कुछ तहकीकें जो हैं वो तहकीकात होनी चाहिए। मौलाना नजर साहब, इस ताल्लुक से आप क्या फरमाएं? डॉक्टर साहब, असल में ये सारे काम जैसे हजरत फरमा रहे थे, ज़ाती और शख्सी नहीं, ये सब हुकूमतें अपनी निगरानी में अंजाम दें और इसका बेड़ा उठाएं, वो कर सकती हैं। कोई ज़ाती तौर पे, शख्सी तौर पे ऐसा नहीं कर सकता। इस वक्त हमें जो ज़रूरत है, अपनी तामीर के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन मैदानों में हमें ज़रूरत है, उन मैदानों में अपने नौजवानों को हम लेकर आएँ, तालीम से आरास्ता करें कि वो इस लायक हों कि अपने पैरों पर खड़े होकर कह सकें कि हाँ, हम हैं, हमारा वजूद है, और महसूस करो हम कुछ कर सकते हैं। यूरोप ने जो कुछ भी किया है, तामीर से ज़्यादा तखरीब और दुनिया को बर्बाद करने का। बकौल इकबाल कि तुम्हारी तहजीब अपने हाथों से खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। अगर आज उन्होंने जितना कुछ ज़ख़ीरा जमा कर रखा है, अगर वो अपने मुल्क में रहते हुए अगर उसमें एक ज़रा सी मामूली गलती हो जाए तो सारा मुल्क फक से उड़ जाएगा। लेकिन वो बड़ी चालाकी से ये सारे अड्डे दूसरे मुल्कों में कायम कर रहे हैं ताकि नुकसान हो तो दूसरों का, दुनिया नहीं, को आप सही नुकसान फरमा से रहे हैं, लेकिन उसके बचाकर बावजूद तामीर की तरफ ज्यादा। इसके बावजूद कि जो खाई होता है वो गिरता ही है, उसमें कभी न कभी उनका तो हाँ, ये बिल्कुल। इसमें बिल्कुल तय है कि ये तो उनका जवाल तय है। हाँ। और देखिए, तामीर उम्मत मुस्लिमा ने हमेशा तामीर की है। तकरीब का कोई काम उम्मत मुस्लिमा के स्तर से नहीं हुआ। तामीर का जो काम हम लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह, सारी दुनिया की क़यादत एक वक्त आएगा कि उम्मत मुस्लिमा करेगी, और अमन, चैन, शांति, जो कुछ भी दुनिया जिसकी मतलाशी है, वो इसी उन्वान से, इसी नाम से, इसी दीन से इंशाअल्लाह वाबस्ता रहेगा। तो हमें कोशिश इसी की होनी चाहिए। और नदीर साहब, मैं यही जानना चाहूँगा इस ताल्लुक से, ये हमको तबाही वाली चीज़ें नहीं चाहिए, ना हमको उसको ईजाद करना है ना करना है। लेकिन दिफा की बात आती है, अभी कल के अखबारात में है कि अफ़गानिस्तान में जो है वो अब तक 70,000 से ज़ायद जो हैं वो बिल्कुल मासूम सिविलियन शहरी जो हैं वो इन 10 सालों में मारे जा चुके हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद है। अब ये हमको हमारी पेशरफ से ये रोके हुए हैं और मुनज़्ज़म तरीके से रोके हुए हैं, और हम अपने दिफा में भी जो है वो कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं। अब इस सिलसिले में जैसे आपने कहा कि इनफरादी शख्स, जो तेरे फ़र्द को क्या करना चाहिए, हुकूमतों को छोड़ दीजिए, लेकिन एक मोहल्ले को क्या करना चाहिए, घरों को क्या करना चाहिए, आप वहाँ से बता दीजिए कि हमारे फ़िक्र में क्या तब्दीली होनी चाहिए, माओं की, बच्चों की। क्या ये होना चाहिए कि जो एक सरसैदी फ़िक्र थी कि भाई एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में साइंस है, किस कदर वो अब फार्मूला लागू होता है। घरों में और मोहल्लों में हमारे यहाँ पर एक फ़िक्री तब्दीली क्या आनी चाहिए? देखिए, अगर जहाँ तक इल्मी दिफा का ताल्लुक़ है, उसके लिए तो पूरी आसानियाँ हैं, अब पूरे ज़राए हैं, कोई कानूनी कवायद नहीं है। लेकिन अमली दिफा, हथियार की दिफा, लाइसेंस हैं, कवानीन हैं, फैक्ट्री कवानीन, दुनिया भर की चीज़ें हैं। अगर यानी रास्ते में आपका कोई बच्चा लेके भी जा रहा तो इल्ज़ाम आ जाएगा कि ये फलां चीज़ ले जा रहा है, फलां चीज़, सब मालूम है। जो रोज़ हम देख रहे हैं, नहीं करते हैं तो इल्ज़ाम आता है कहने, तो उसका तो तसव्वुर नहीं, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी से वाबस्ता होने के लिए स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, यूनिवर्सिटियों से लेकर तो रिसर्च इदारों तक, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी एक फ़िक्र हमारे घरों में आनी चाहिए, हमारे वालिदैन में, माँ बाप में? देखिए, जहाँ तक सर सैयद के फ़िक्र की बात है तो उसका कोई मुनकिर नहीं है जी। और सर सैयद के फ़िक्र को हमेशा सराहा गया। उसकी आप यही देख लीजिए कि सर सैयद ने तफसीर लिखी, दीन की तशरीह की, यूनिवर्सिटी कायम की, तशरीह दीन तफसीर गायब हो गई, यूनिवर्सिटी उनकी चल रही है, निज़ाम फ़िक़्ह तालीम का चल रहा है। तो जो चीज़ कौम के लिए मुफीद होती है, अल्लाह उसको कायम रखते हैं, उसमें अल्लाह बरकत देते हैं।
अब रहा हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, मगर साहब इससे हट के मैं एक बात तो कहना चाहूँगा कि एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारी कौम में सबसे बड़ी कमजोरी आ गई है कि हम अपनी ज़ात का इदराक नहीं कर सके हैं। जी। अगर शऊर ज़ात पैदा हो जाए तो हमारे बहुत से मसाइल भी हल होंगे, बहुत से आने वाली मुसीबतें भी टलेंगी। हम बेकीमत हो गए हैं, और बेकीमत होने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ प्याले दिखाई देते हैं, कुछ प्याले दिखाई नहीं देते। हमारी अक्सरियत नजर न आने वाले प्याले लेके चल रही है। इससे कौम को बचाना है। इसी सिलसिले को मैं अशफाक सल्फी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मौलाना ने फरमाया कि बेकीमत हो गई है, बेवजन हो गई है, ये हो गई है, इसकी वजह ये तो नहीं कि हम असल अपने मसाइल से हटकर जो हैं वो छोटे छोटे मसाइल में उलझ गए हैं और उनको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, उनमें उलझे हुए हैं और आपस में ही टकराव की पॉलिसियाँ जो हैं अपना रहे हैं, और उसमें मसाइल देखे जाएं तो बहुत ही छोटी बातें हैं। तमाम बातों को कैलकुलेट करके अगर निकालें तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मुसलमानों के अंदर ये शऊर जगाने की ज़रूरत है कि ये उम्मत कायद उम्मत बनाई गई है और क़यादत आज दुनिया की दूसरी कौमें कर रही हैं, और हम हर एतबार से इल्मी ज़बूहाली के ज़्यादा शिकार हैं। माशी ज़बूहाली, सियासी ज़बूहाली के मुकाबले में इल्मी ज़बूहाली के ज़्यादा शिकार हैं। तो जहाँ से गांव देहात के अंदर भी ये फ़िक्र हो और वहाँ के अरबाब बस्त कुशात से मिलकर ये सोच डेवलप करने की ज़रूरत है कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं, ज़हीन हैं, फ़तीन हैं, उनको दो और उनको हम अपनी फैक्ट्री में, इल्म की फैक्ट्री में आदमी बनाते हैं, टेक्निकल इदारों में उनको दाखिल करते हैं। अगर तुम उनको नहीं सजा सकते, उन पर खर्च नहीं कर सकते, तो चूँकि लड़का होनहार है, ज़हीन है, शौकीन है, हम इसको आगे प्रमोट करते हैं। इसके लिए जो इदारे चल रहे हैं, इदारे के ज़िम्मेदार या कुछ नए इदारे खोलें, कुछ कोचिंग सेंटरों का इंतज़ाम हो ताकि वहाँ से जो लड़के आएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़िक्र भी डेवलप कर रही है। कई सूबों के अंदर, कई शहरों के अंदर कोचिंग सेंटर खुले हैं और वहाँ से अच्छे लड़के निकले हैं, IIT में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं। तो इस तरीक़ा के इदारा कौम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शऊर पैदा हुआ है, और बासलाहियत अफराद कौम के लिए मुखलिस होते हैं और ऐसे गरीब नादार बच्चों की हौसला अफजाई कर सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं, उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये सब नेकफाल होगा। नाज़रीन, हमने देखा कि आज के इस बहस में कई पहलुओं को हमने देखा कि मुसलमानों का जो है जदीद उलूम में क्या किरदार है, क्या रोल रहा है, और उसमें अगर कुछ आज कमियां और खामियां अगर हमको लग रही हैं तो उसका इलाज क्या है, वो उसका भी हमने मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया। मैं आप तमाम साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बहस में हिस्सा लिया। यहीं पर ये बात ख़त्म होती है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।